Hello students, once again welcome to Edwards Learning. This is SD and we are here today for chapter number 5 of your Science 1 or Science A and Science A Technology paper 1, whatever you call it. ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं एक पूरे फिजिक्स के एस्पेक्ट से है, फिजिक्स के कॉर्नर से कनेक्ट करता है. वैसे तो फिजिक्स के बहुत सारे कॉर्नर्स हैं. देयर इज एस्ट्रोफिजिक्स, देयर इज मैकेनिक्स, देयर इज क्वांटम फिजिक्स. But this one specifically falls under something called as thermodynamics. आप अपने आने वाले स्टैंडर्ड्स में 11th में 12th में थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले हो और थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे अंदर डिटेल्स हैं. देयर इज ज़ीरोथ लॉ, देन देयर इज एनालिटिक एक्सपेंशन, देन देयर इज कैलोरीमेट्री, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. But in this chapter we'll very specifically stick to the concept of heat and we'll try to remove some of our misconceptions and get into the detail of the chapter. इस chapter से जो questions हमको expected हैं, they are both like we can expect numericals also and we can expect theory questions as well. Some new concepts like the anomalous expansion, depending on that, the Hopes apparatus are slightly difficult, or rather they seem to be difficult for the very first time when you approach them. But with time, things will settle down and eventually we will all have a good grip over this chapter. Textbook reading is a must when I talk about this chapter because there are many small details that might come up like questions of MCQs, and hence we will, without any further delay, start with the chapter. Now, do you remember the difference between heat and temperature? हम लोग आम तौर पे इन दोनों टर्म्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं. वी फील हीट एज वेल एज टेम्परेचर आर वन एंड द सेम थिंग, विच इज नॉट अ फैक्ट. दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, दे आर टू डिफरेंट एंटाइटीज. हाउ इज आवर कंसर्न? हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, वेयर एज टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब्सटेंस. मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. हर पार्टिकल की अपनी एक वेलोसिटी होगी, हर पार्टिकल का अपना एक मास होगा, इसलिए हर पार्टिकल का अपना एक काइनेटिक एनर्जी होगा. और ऐसे सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ऐड करेंगे तो जो हमको मिलेगा वो हीट है. Adding up all the kinetic energies, total kinetic energy of all the molecules is basically heat. While what is temperature? Temperature is the average kinetic energy of substance. Rather, temperature, I would say, indicates the amount of heat that is present. It is temperature that actually indicates कि कितना हीट उस पर्टिकुलर एंटाइटी में, उस पर्टिकुलर बॉडी में, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में प्रेजेंट है. ठीक है. डिफाइनिंग वंस अगेन, हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द मॉलिक्यूल, द सब्सटेंस, while temperature is the average kinetic energy of the substance. Now let's talk about phase change. Before we go to the detail, let us first of all understand what is phase. So states of matter हमने पढ़ा है. Matter exists in 3 states predominantly: solids, liquids and gases. So जब एक particular substance, एक particular matter, एक particular entity solid phase से liquid state में जाता है, उसको मैं बोलता हूँ change of phase. जब वो liquid से gas में जाता है, I'll call it as phase of change. वो gas से liquid में आएगा तो भी phase of change. Liquid से solid is also phase of change. Gas से solid is phase of change and solid से gas is also phase of change. So एक state of matter से दूसरे state of matter में जब एक object जाता है उसको हम लोग phase change बोलते हैं. So what do we do? Take a few pieces of ice in a glass beaker, insert the bulb of a thermometer in ice and measure its temperature. Ice ले लिया हमने, thermometer डाल दिया, उसका हमने temperature measure कर लिया. Put the beaker on a stand and heat the ice using a burner. इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं.
रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग थर्मोमीटर आफ्टर एवरी मिनट। आप क्या करो, हीट करते वक्त भी थर्मामीटर में जो भी टेम्परेचर का रीडिंग है उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहो, उसको कंटिन्यूसली नोट डाउन करते रहो। एज द आइस इज हीटेड इट स्टार्ट्स व्हाट, मेल्टिंग। स्टर द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड देन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। तो आपने एक कांच का बर्तन ले लिया, उसमें आपने आइस डाल दिया, उसको आपने एक थर्मामीटर लगा दिया, इस पूरे सिस्टम को आप नीचे से हीट दे रहे हो, और उसके बाद जब आप हीट दे रहे हो तो आप प्रति मिनट कंटिन्यूसली विदाउट एनी स्टॉप आप टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हो कि टेम्परेचर किस तरह से वेरी हो रहा है, टेम्परेचर वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड जैसे जैसे आइस मेल्ट होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स उसको हीट मिल रहा है, उसको स्टिर करते रहो, पानी और आइस का जो भी मिक्सचर है स्टिर करते रहो, लेकिन टेम्परेचर नोट डाउन करते रहो। नाउ आई नो यू हैव नॉट डन दिस सो फार, बट टू योर एक्साइटमेंट एंड टू योर अमेजमेंट लेट अस सी द चेंज। क्या होगा? दिस इज द ग्राफ यू विल गेट। इस ग्राफ में क्या बोल रहे हैं देखो, शुरू में आपका जब टेम्परेचर जीरो है वो काफी देर तक जीरो ही है, काफी देर तक जीरो ही है। कब तक जीरो है वो देखो, यहां तक जीरो है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो रहा है, उसके बाद टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो रहा है, और कहां तक पहुंच रहा है? 100 तक पहुंच रहा है। उसके बाद बहुत देर तक क्या है? 100 ही है, बहुत देर तक 100 ही है। बोलने का मतलब जब तक आपका पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, तब तक टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस ही है। जब आइस से वाटर और वाटर से वेपर कन्वर्जन होगा ना, तो जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। सिमिलरली जब तक पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब यह है बॉस कि जब फेज चेंज चल रहा होता है, जब ऑब्जेक्ट का फेज चेंज चल रहा होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर डज नॉट चेंज। If my ice is at 0 degree Celsius, then until and unless entire ice is converted into water, my temperature will remain 0 degree Celsius. I repeat, if there is ice, I'm trying to convert that into water by providing heat, then unless and until the entire ice is converted into water, my temperature will remain 0 degree Celsius. Now, once it is converted into water, the temperature goes on rising, rising, rising. टेम्परेचर से पानी गर्म होगा तो 10, 20, 30, 40, 60, 100 तक जाएगा। एक बार वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया और उसके बाद भी आपने गैस चालू रखा तो पूरा पानी वेपराइज होने वाला है, राइट? लेकिन जब तक पूरा पानी वेपराइज नहीं हो जाता, अनलेस एंड अनटिल द एंटायर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, टेम्परेचर रिमेन्स व्हाट? 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या नोट किया हमने कि फेज चेंज के दौरान जब तक पूरा फेज चेंज नहीं होता, जब तक पूरा का पूरा मैटर फेज अपना चेंज नहीं कर लेता, टेम्परेचर उतना ही रहता है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इनिशियली टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस टिल आइस मेल्ट्स कंप्लीटली। आफ्टर दैट टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग and reaches up to 100 degree Celsius. At this stage, temperature once again remains constant till entire water gets converted into ice. It has to be vapor. The graph of temperature versus time is shown as here. AB is conversion of ice into water. यहां A और यहां B है. So AB phase कौन सा है? Conversion of ice into water. BC is rise in temperature of water. B से लेके C तक का कौन सा रेंज है? Rise in temperature. And CD is conversion of water into steam. CD is conversion of water into steam. तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारे पास अगर कोई मैटर है और वो एक स्टेट में है, तो जब तक उसका स्टेट पूरी तरह से दूसरे स्टेट में नहीं जाता, जब तक वो पूरी तरह से फेज चेंज नहीं कर लेता, तब तक उसका टेम्परेचर वेरी होने वाला नहीं है, राइट? सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ फेज चेंज. नाउ फ्रॉम दैट कम समथिंग कॉल्ड एज लेटेंट हीट. व्हाट इज लेटेंट हीट? ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड होते वक्त द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज. जैसे अभी सॉलिड आइस जो वाटर बन रहा था,
तो आइस वाटर बनने के प्रोसेस में उस बर्नर से हीट जरूर ले रहा था, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने नहीं दे रहा था. Ice was obviously absorbing heat from the burner to convert into water, but it was not letting the temperature increase, right? So this heat energy is utilized for weakening the bonds between atoms or molecules in the solid and transformation to liquid phase. तो ये जो heat है ना, solid से लिक्विड फेज में जाने के लिए जो भी हीट लगता है, ये सिर्फ बॉन्ड वीकनिंग के काम आ रहा है. ये सिर्फ बॉन्ड वीकनिंग के काम आ रहा है. द हीट एनर्जी absorbed at constant temperature. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is called latent heat of fusion. What is latent heat of fusion? When a particular object, matter or entity is in solid state and it is gradually going into the liquid state because of external heat which is being provided, the amount of heat which is absorbed by that material or by that entity to convert into liquid without changing temperature or at constant temperature will be termed as latent heat of fusion. Moving ahead, the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass. What is unit mass? 1 gram of solid to convert into liquid is called specific latent heat of fusion. मतलब थोड़ी देर पहले हमने जब बर्फ की बात की तो पूरा बीकर भर के बर्फ था ना, लेकिन if there is 1 gram of solid converting into 1 gram of liquid, तो यहां जितना हीट लगेगा उसको मैं बोलूंगा specific latent heat of fusion. Specific latent heat of fusion. Once again I'll repeat, latent heat of fusion क्या होता है? जब एक सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो जितना हीट एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, उस हीट एनर्जी को जिसको हम एब्जॉर्ब करके अपना फेज चेंज कर रहे हैं हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन इज द वर्ड दैट इज इंडिकेटिंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड. फ्यूजन वो वर्ड है जो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन का यहां पे बात कर रहा है. अच्छा, वही एंटाइटी, वही ऑब्जेक्ट, वही मैटर को अगर मैं 1 ग्राम यूनिट मास 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर मैं सॉलिड से लिक्विड भेज रहा हूं तो जो हीट एब्जॉर्ब होने वाली है उसको मैं बोलूंगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर यू. देन कम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. आई होप फ्यूजन सुन के वेपराइजेशन कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आएगा. ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैस फेज, heat energy is absorbed by the liquid, but its temperature does not change. The constant temperature at which liquid transforms into gaseous state is called boiling point of liquid, which is 100. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called latent heat of vaporization. अब since आपको latent heat of fusion ढंग से समझ गया है, ये समझना बहुत आसान है. हम लोग सॉलिड से लिक्विड आ रहे थे तो वो फ्यूजन था, लिक्विड से गैस आ रहे तो वेपराइजेशन है. सेम प्रोसेस, सेम कॉन्सेप्ट. टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, हीट एनर्जी होगी एब्जॉर्ब. सिर्फ अभी हम लोग लिक्विड से गैस फेज में आएंगे. तो जितना हीट एनर्जी मैं यूज करने वाला हूं लिक्विड से गैस फेज में जाने के लिए, उसको मैं बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. और वही चीज अगर मैंने यूनिट मास के लिए की, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड at constant temperature by unit mass 1 gram of liquid to convert into gaseous phase is called as specific latent heat of vaporization. इसको बोलेंगे specific latent heat of vaporization. So far we've studied heat, then we got to know what is temperature, then we got to know what is phase change, and then we studied लेटेंट हीट. और लेटेंट हीट में हमने दो चीजें पढ़ी, एक फ्यूजन और एक वेपराइजेशन. दैट इज स्लाइटली आवर जर्नी सो फार. हीट क्या हमने देखा, हीट और टेम्परेचर किस तरह से अलग अलग है वो देखा. फिर हमने देखा कि फेज चेंज का मतलब क्या होता है, फेज चेंज कैसे होता है, और फेज चेंज होने की प्रोसेस में जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं. और अगर वही चीज हम 1 ग्राम के लिए कर रहे हो तो उसको हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट
बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड वाले को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, लिक्विड से गैस वाले को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। नाउ देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट which is regulation, REGELATION। अब मान लो आपने एक टेबल लिया, उस टेबल पे आपने एक आइस क्यूब रखा, स्लैब रखा, स्लैब बर्फ का, एक बर्फ की लादी रख दी, स्लैब रख दिया और उसके ऊपर एक थ्रेड लटका दिया, ऐसे आर पार, उस तरफ एक वेट है, इस तरफ एक वेट है। सो बेसिकली स्लैब के ऊपर दोनों तरफ से वेट से खींचा जाने वाला थ्रेड है। आई डोंट नो इफ यू हैव डन दिस सो फार, लेकिन व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू नो, वो जो थ्रेड है वो धीरे धीरे आइस के अंदर जाएगा, उसके बाद आइस वापस आइस बन जाएगा एंड स्लाइट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, इट विल रीच द सरफेस ऑफ द टेबल। थ्रेड विल एक्चुअली मेक इट थ्रू द ice slab. Ice will remain ice, or with room temperature it may change its form into slightly water or whatever, but that thread can make it through the entire matter and content of ice without actually cutting it into two pieces. उसको तोड़ने टुकड़े नहीं करने वाला, वो खुद उससे पास होगा। इस प्रोसेस को रेगुलेशन बोलते हैं। Let us see how. Put a slab of ice on a stand as shown. Hang two equal weights of two ends to the two ends of metal wire and put the wire on the slab as shown. It is observed that wire gradually penetrates, इसको metal wire लो, usually penetrates the ice slab. After some time the wire comes out of the lower surface of slab. However, the ice slab does not break. Ice slab break नहीं करेगा, लेकिन आपका पूरा जो metal wire है वो through the volume, through the surface, through the entire ice slab निकल जाएगा. The melting point of ice becomes lower than 0 degree Celsius due to pressure. वो जो प्रेशर है ना, उसका प्रेशर, दोनों वेट की वजह से जो प्रेशर है, उस प्रेशर के चलते जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। दिस मीन्स दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। एज सून एज द प्रेशर इज रिमूव्ड द मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। जैसे ही वो प्रेशर कम होता है, वहां का पानी वापस आइस बन जाता है। वापस नीचे वाला लेयर क्या होगा, प्रेशर फील करेगा, पानी बनेगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा, will become ice. So basically that pressure which is being increased or applied on that ice slab is making this entire process happen. उस प्रेशर के चलते मेल्टिंग पॉइंट कुछ टाइम के लिए लोअर देन 0 हो जाता है, फिर वापस 0 हो जाता है। That is the reason the phenomena in which ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once pressure is removed is called as regulation. So regulation क्या है? Regulation is a process where ice converts into water temporarily due to pressure which is being applied and then reconverts into ice once the pressure is removed is called as regulation. I'll repeat. Regulation is a process where ice converts into water due to certain amount of increased pressure, and as soon as the pressure is removed, it gets converted back into ice. This process is called as regulation. So that is what regulation for you guys. This is the definition. The phenomena in which ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once pressure is removed is called as regulation. Now that is one of the most important concepts of this chapter. ये पहली बार आप सुन रहे हो, ये कुछ नया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ये सुनने, समझने, पढ़ने में मजा भी आने वाला है. So the concept here is nothing but anomalous behavior of water. So anomalous behavior of water, this concept first of all asks me to talk about this word. What is anomalous? Now anomalous मतलब slightly abnormal, slightly different than what was expected. इसको हम बोलते हैं anomalous behavior. अब देखो, we already know the concept density is mass upon volume, which tells me कि density and volume are inversely proportional. जिसका मतलब यह है कि डेंसिटी बढ़ने पे वॉल्यूम कम होना चाहिए, डेंसिटी भी घटने पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और वाइस वर्सा. सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट? ऑल्सो व्हेन यू गिव हीट टू अ पर्टिकुलर मैटर, सब्सटेंस, एंटाइटी, इट एक्सपांड्स, एक्सपांशन होता है. सो वाटर इफ इट इज हीटेड इट शुड एक्सपांड, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. अच्छा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए, राइट? दिस इज द आइडियल सिचुएशन, दिस इज द आइडियल सिचुएशन. लेकिन
पानी क्या करता है ना, पानी 0 to 4 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस, इस ब्रैकेट में इसका विपरीत बिहेव करता है। पानी 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के ब्रैकेट में इसका उल्टा बिहेव करता है। तो बेसिकली 0 से 4 डिग्री जब पानी जा रहा है, तो बेसिकली इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, सो दैट शुड कॉज डिक्रीज इन डेंसिटी। बट ऐसा होता नहीं है। 0 to 4 डिग्री में डेंसिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली रेड्यूस इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस। मतलब आपका जो वॉल्यूम है, पानी का जो वॉल्यूम है विच इज सपोज टू एक्सपांड, इट डजंट एक्सपांड इन द ब्रैकेट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के ब्रैकेट में पानी एक्सपांड होना एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो एक्सपांड नहीं होता। सी, सो इन जनरल व्हेन a liquid is heated up to a certain temperature, it expands, and when cooled it contracts। ये जनरल बिहेवियर है। हीट करने पे एक्सपांड होना चाहिए और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। वाटर however shows a special and exceptional behavior if we heat water from 0 degree Celsius up to 4 degree Celsius। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के ब्रैकेट में जहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब हीट दी जा रही है, इट इज सपोज टू एक्सपांड बट एक्चुअली contracts। It contracts instead of expanding। At 4 डिग्री सेल्सियस its volume is minimum। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। तो 0 डिग्री पे जो भी वॉल्यूम है, 4 डिग्री पे उसका वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है। 0 से 4 तक वॉल्यूम कम हुआ, आइडियल एक्सपेक्टेशन क्या है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन 0 to 4 में क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, और 4 के बाद इट गोज इन द आइडियल बिहेवियर। 4 डिग्री के बाद वाटर का जो बिहेवियर है वो आइडियल बिहेवियर बन जाता है। सो एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इज मिनिमम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर, इट एक्सपांड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर आपने 4 डिग्री के आगे भी पानी को हीट किया, तो एज पर नॉर्मल बिहेवियर, एज पर नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस, इट बिहेव्स दैट वे, इट एक्सपांड्स, राइट। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। 0 से 4 डिग्री के ब्रैकेट में जो विचित्र वियर्ड बिहेवियर पानी आपको दिखा रहा है, उसको हम बोलते हैं एनामिलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। If 1 kg of water is heated from 0 degree Celsius and its volume is plotted as a function of a temperature, we get the graph shown here. At 4 degree Celsius, the volume of water is minimum. It means that density of water is maximum. ये जो लॉजिक है ना, इस लॉजिक से दो बातें बाहर आती है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है, मतलब क्या, डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वॉल्यूम 4 डिग्री पे क्या है, मिनिमम है, इसलिए डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक बार रिपीट करते हैं इसको आज। नाउ वाटर मस्ट एक्सपांड ऑन heating. This is the ideal behavior, this is the ideal expectation. But from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, it contracts. What it does? It contracts. 0 to 4 डिग्री में वो contract होता है, और contract होने की वजह यह है, contract होने की वजह से 4 डिग्री पे वॉल्यूम इज मिनिमम. सो हियर वी कैन से देयरफॉर वाटर हैज वॉल्यूम मिनिमम at 4 degree Celsius, and therefore water has density maximum at 4 degree Celsius. 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, और डेंसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा. और एक बार 4 डिग्री सेल्सियस पार कर जाए तो वाटर डज व्हाट, वाटर गोज इनटू इट्स आइडियल बिहेवियर. मतलब जैसे उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा वैसा वाटर 4 डिग्री के आगे बिहेव करना शुरू करेगा. सो दिस इज आइडियल, और दिस इज द एनामल एक्सपेंशन ऑफ वाटर. और एनामलस वर्ड का अभी आपको जस्टिफिकेशन समझा होगा कि एनामलस को मैंने स्लाइटली वियर्ड, स्लाइटली डिफरेंट,
apart from what is expected, क्यों बोला है. And this anomalous expansion of water has many more applications. Hope's apparatus. What is happening as Hope's apparatus? ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर में लिक्विड है, उस लिक्विड को इस ब्रैकेट में, इस जोन में एक फ्रीजिंग मिक्सचर लगा हुआ है, बर्फ डाला हुआ और एक बर्तन है जिससे पानी वहां ठंडा हो रहा है, फ्रीजिंग मिक्सचर हो रहा है. अब नाउ वी नो व्हाट वी नो कि इफ हीट इज प्रोवाइडेड, वॉल्यूम शुड इंक्रीज, डेंसिटी शुड डिक्रीज. इफ heat is removed, volume should decrease and density should increase. ये हमको जनरली पता है, बट यहां पे हो क्या रहा है देखो. The anomalous behavior of water can be studied with Hope's apparatus. In Hope's apparatus, a flat bowl is attached to a cylindrical container. There is provision to attach thermometers above to measure temperature T2 and below to measure T1. यहाँ पे दो थर्मामीटर है, इसको T1 बोल रहे हैं हम लोग और इसको T2 बोल रहे हैं. T1 इस रीजन के पानी का टेम्परेचर नोट कर रहा है और T2 इस रीजन के पानी का टेम्परेचर नोट कर रहा है. सो वाटर इज फिल्ड इन द कंटेनर एंड अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट, जिसको हम फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं, इज पुट इन द फ्लैट बाउल. पानी डाल दिया बीकर में और उस रीजन में, बीच में कहीं एक रीजन में हमने फ्रीजिंग मिक्सचर डाल दिया जहां पे आइस और आपने सॉल्ट डाल दिया. सो ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स apparatus, टेम्परेचर T1 एंड T2 आर रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स. इस कंटेनर को, इस सेटअप को तैयार करने के बाद हर 30 सेकेंड में T1 का थर्मामीटर का टेम्परेचर और T2 के थर्मामीटर टेम्परेचर दोनों को नोट किया जा रहा है. ओके, द टेम्परेचर्स आर प्लॉटेड ऑन द y एक्सिस एंड टाइम ऑन द x एक्सिस. अच्छा, इस पूरे सेटअप के बाद एक ग्राफ बनेगा और उस ग्राफ के x एक्सिस पे टाइम आएगा और y एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा. ओके, अभी तक हमको पता नहीं ग्राफ में क्या आने वाला है, क्या रीडिंग्स आने वाली है, T2 कब कितना होने वाला है, T1 कब कितना होने वाला है. अभी तक हमको सिर्फ ये पता है कि भाई हमने एक कंटेनर लिया, सिलेंड्रिकल कंटेनर, उस पर हमने पानी डाल दिया. उसके बाद हमने कहीं तो बीच में उसको फ्रीजिंग मिक्सचर लगाया जहां पे हमने आइस और सॉल्ट डाल दिया. और जो दो थर्मामीटर लिया हमने लिया, एक लिया T2, एक लिया T1. T2 ऊपर की तरफ है और T1 नीचे की तरफ है. राइट, अब आगे जाने से पहले थोड़ा सोचते हैं कि क्या होगा. ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है यहां के पानी को ठंडा करेगा, पानी को ठंडा करेगा. अच्छा, अगर वो पानी को ठंडा कर रहा है मतलब टेम्परेचर कम कर रहा है. अगर पानी को ठंडा कर रहा है मतलब वॉल्यूम कम कर रहा है. अगर वॉल्यूम कम कर रहा है तो डेंसिटी बढ़ा रहा है. अगर वो डेंसिटी बढ़ा रहा है तो यहां वाला पानी नीचे जाना चाहिए. यहां पे जो पानी है वो डेंसिटी बढ़ने की वजह से नीचे जाना चाहिए और यहां वाला पानी ऊपर आना चाहिए. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट. बट ये चलते रहेगा कब तक? जब तक यहां का पानी 4 डिग्री पे ना आ जाए. एक बार वो पानी 4 डिग्री पे आ गया, एक बार यहां वाला पानी 4 डिग्री पे आ गया, उसके बाद जब आप और ठंडा कर रहे हो उसको, आप उससे हीट निकाल रहे हो, तब इट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बट इट एक्चुअली एक्सपांड्स. 4 डिग्री के बियॉन्ड, 4 डिग्री के बाद बियॉन्ड 0 डिग्री तक आप जब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यहां का पानी क्या होगा? एक्सपांड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा. और डेंसिटी घटने की वजह से दिस वाटर विल नॉट गो डाउन एनी मोर. लेट अस नाउ लुक एट द ग्राफ्स. द ग्राफ विल गिव अस मोर एक्सप्लेनेशन. दिस इज द ग्राफ. ध्यान से देखो तो T1 T2 दोनों शुरू में 12 डिग्री सेल्सियस पे थे, फिर दोनों एक पॉइंट पे आके 4 डिग्री हुए और उसके बाद दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे जाके लैंड हो गए, अलग अलग टाइम पे 0 हुए. वापस बोलता हूं, T1 T2 शुरू में दोनों कितने पे थे? 12 पे थे. 0 सेकेंड्स पे दोनों 12 डिग्री सेल्सियस पे थे. उसके बाद रफली अराउंड 27-28 सेकेंड्स और मिनट्स, रादर 27-28 मिनट्स, दे बोथ केम टू 4 डिग्री सेल्सियस. एक बार दोनों 4 डिग्री पे आने के बाद जो T2 है वो जल्दी 0 हो गया, लेकिन T1 को समय लगा. T2 जल्दी 0 हो गया, T1 को समय लगा. T2 जल्दी 0 हो गया, T1 को समय लगा. Okay, now let us see why. Initially, temperature of water in the middle of the cylinder lowers due to the freezing mixture in the outer bowl. बाहर के बॉल की वजह से वहां पे पानी ठंडा हो रहा था. Since the temperature of water there decreases, its volume decreases and its density increases. The water with the higher density moves downwards. Therefore, the lower thermometer T1 shows rapid fall in temperature. अभी T1 जल्दी जल्दी कम हो रहा है. T1 जल्दी जल्दी कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? बिकॉज वो जो
कूलिंग मिक्सचर है, फ्रीजिंग मिक्सचर है, वो फटाफट पानी को ठंडा कर रहा है, नीचे भेज रहा है, ठंडा कर रहा है, नीचे भेज रहा है, ठंडा कर रहा है, नीचे भेज रहा है। तो T1 क्या कर रहा है, नीचे का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है ना। T1 इज बेसिकली रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर एट द लोअर हाफ, और फ्रीजिंग मिक्सचर क्या कर रहा है, पानी को ठंडा कर रहा है, नीचे भेज रहा है, ठंडा कर रहा है, नीचे भेज, जिसकी वजह से T1 जो है वो फटाफट कम हो रहा है। T1 is decreasing rapidly, it is coming rapidly to 4 degree Celsius. Therefore, lower thermometer T1 shows rapid fall in the temperature, and this continues till the temperature of water becomes what? 4 degree Celsius. ये टेम्परेचर कम होना कब तक चला, जब तक 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी नहीं पहुंच गया। When the temperature of water starts decreasing below 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब होने लगा, its volume increases, its volume increases, actually volume decrease होना चाहिए, बट वहां पे increase हो रहा है, क्यों? Anomalous behavior. And density decreases. It therefore moves in the upward direction. The temperature of water in the upper part T2 therefore decreases rapidly to 0 degree Celsius. So after 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है कि यहां का जो पानी है वो अब नीचे जाना बंद हो गया, वो ऊपर जा रहा है। वो ऊपर क्यों जा रहा है? बिकॉज डेंसिटी अब उसकी कम हो रही है। जब पहले डेंसिटी बढ़ रही थी, वो डेंसिटी कम हो रही है, और वो ऊपर जाने की वजह से अब T2 जो है वो फास्ट नीचे उतरेगा। सी 4 डिग्री के बाद T2 फटाक से जीरो हो गया, T2 फटाक से जीरो हो गया, T1 को समय लगा। सो 4 डिग्री सेल्सियस तक T1 का स्पीड ज्यादा था टेम्परेचर कम होने का, और 4 डिग्री के बाद T2 का स्पीड ज्यादा हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी T1 बहुत लेट जीरो पे आया। सो दैट इज होप्स apparatus फॉर यू। यहां पे पानी ठंडा होगा, ठंडा होने की वजह से उसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो पानी नीचे जाएगा। मतलब ये फ्रीजिंग मिक्सचर क्या कर रहा है, पानी ठंडा कर रहा है, नीचे भेज रहा है, ठंडा कर रहा है, नीचे भेज रहा है, नीचे वाला पानी ऊपर जा रहा है। तो जो पानी ठंडा करके नीचे भेज रहा है, तो T1 का जो थर्मामीटर का रीडिंग है वो फटाफट कम होना एक्सपेक्टेड है, फटाफट कम होना एक्सपेक्टेड है। कब तक? जब तक यहां वाला पानी 4 डिग्री पे ना आ जाए। एक बार 4 डिग्री पे आ गया तो ये जो ठंडा करेगा, ठंडा करने के बाद उसको नीचे ना भेज पाएगा, बिकॉज ऑफ एनामेलस बिहेवियर शुरू हो गया, पानी ऊपर जाएगा। ऊपर जाने की वजह से अब T2 जो है वो फास्ट कम होगा। इसलिए फ्रॉम 12 डिग्री दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, 12 डिग्री पे दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। 4 डिग्री आने के लिए पहले T1 को कम समय लगता है, T2 स्लोली आता है, लेकिन एक बार 4 डिग्री पे आ गए देन T2 rapidly goes to 0, T1 takes time. That is how the entire Hope's apparatus basically functions. There are more, what you can say, applications of anomalous behavior. This is one of them. The role of anomalous behavior of water in preserving aquatic life in the cold region. Aquatic life जो है cold region में किस तरह से anomalous behavior का फायदा उठाती है, देखते हैं। In region of cold climate with decrease in temperature, density of water increases up to 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा उसका डेंसिटी 4 डिग्री तक इंक्रीज होगा, सो इट गोज डाउनवर्ड्स, वेयर एज between 0 to 4 density decreases, between 0 to 4 density decreases, therefore ice will float on the surface of water. ice क्या करेगा? सरफेस पे ही फ्लोट होगा। ice is bad conductor of heat, so it further stops exchange of heat between air and surrounding. As a result, water below the ice remains at 4 डिग्री सेल्सियस। जो सरफेस पे आइस बना, जो सरफेस पे आइस बना वो अब बाहर का और अंदर का टेम्परेचर का एक्सचेंज बंद कर देता है, इसलिए एक्वाटिक लाइफ अंदर सरवाइव कर पाती है 4 डिग्री पे। इसलिए अंदर का एक्वाटिक लाइफ सरवाइव कर पाती है 4 डिग्री पे। अगर पूरा का पूरा वाटर बॉडी फ्रीज हो गया, सो हाउ विल द एक्वाटिक लाइफ सरवाइव? अंदर जो भी फ्लोरा फाउना है वो किस तरह से सरवाइव करेंगे? वो ऐसा ना हो, इसलिए सिर्फ ऊपर का पार्ट आइस बनता है एंड द रेस्ट रिमेन्स वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दैट इज हाउ basically anomalous behavior is used by aquatic life in preserving their survival. Okay, now then comes dew point and humidity, but I think for today's session we'll be stopping at anomalous behavior of water, and next time when we meet we'll discuss more about dew point and humidity. Just to brief you what all we have discussed so far, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या देखा अभी तक। We started with heat. We understood difference between heat and temperature. हमको पता चला हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, और दोनों में फर्क क्या होता है। आगे जाके हमने फेस चेंज क्या होता है समझा, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस को हम फेस चेंज बोलते हैं,
उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? उसके लिए हीट रेस्पॉन्सिबल है। देन वी सॉ द ग्राफ, जिस ग्राफ से हमको पता चला कि अगर मैं एक बीकर में आइस डाल के उसको बर्नर से हीट दे रहा हूं और ये प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा हूं बहुत टाइम तक, तो बीकर का आइस पानी बन जाएगा, पानी का वेपर बन जाएगा। लेकिन बर्फ से पानी बनने का समय टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और पानी से एक बार पूरा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न हो गया तो 100 डिग्री कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरा पानी वेपर नहीं बन जाता, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के दो वर्जन, एक फ्यूजन और एक वेपराइजेशन। तो सॉलिड टू लिक्विड जब चेंज हो रहा है उस हीट को मैं बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड टू गैस जब हो रहा है उसको मैं बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, इस प्रोसेस में अगर मैं यूनिट मास के साथ काम कर रहा हूं, वर्किंग ऑन 1 ग्राम ऑफ समथिंग, if I am working on 1 gram of something, I will not call it as latent heat, just I will call it as specific latent heat। मतलब अगर 1 ग्राम ऑफ सॉलिड को हीट कर करके मैं लिक्विड बना रहा हूं तो उसमें जो हीट एनर्जी कंज्यूम हुई जहां टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ उसको मैं बोलूंगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली 1 ग्राम ऑफ लिक्विड अगर मेरे पास है और उस 1 ग्राम ऑफ लिक्विड को हीट दे दे के मैं गैस बना रहा हूं जहां पे इट विल टर्न इनटू गैस विदाउट increase in temperature, I will call it as latent heat of vaporization, लेकिन specific latent heat of vaporization। Then we saw what is regulation। हमने बोला कि अगर एक solid है, particularly ice है, and ice is due to increased pressure converting into water for temporarily purpose, and then after the pressure is removed it is converting back into ice, then that particular process is called as regulation। रेगुलेशन क्या है? क्षणिक, टेम्पररी पर्पस, टेम्पररी मोमेंट के लिए ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर जब सॉलिड आइस वाटर बनता है और प्रेशर निकलने के बाद वाटर जो है आइस बन जाता है, उसको हम रेगुलेशन बोलेंगे। देन कम्स एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जहां मैंने शुरू में आपको बोला कि आइडियली एक्सपेक्टेड क्या है। आइडियली एक्सपेक्टेड ये है कि जब आप किसी चीज को हीट दो तो उसका टेम्परेचर बढ़े, उसका वॉल्यूम बढ़े। उसका अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका डेंसिटी घटना चाहिए। So increase in temperature, increase in volume, decrease in density is the ideal expectation। लेकिन वाटर जो है वो 0 to 4 डिग्री ब्रैकेट में उल्टा बिहेव करता है। जब आप 0 डिग्री के आइस को हीट देना शुरू करते हो तो 0 to 4 डिग्री में वो हीट लेने के बाद एक्सपांड ना होके कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो डेंसिटी उसकी घटनी चाहिए वो बढ़ जाती है। इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है और मिनिमम वॉल्यूम होता है। देन वी सॉ होप्स apparatus, जहां हमको पता चला कि भाई एनामलस बिहेवियर का एप्लीकेशन किस तरह से हम सीख सकते हैं, जहां पे हमने 2 थर्मामीटर लगाए और एक फ्रीजिंग मिक्सचर लगाया, और फ्रीजिंग मिक्सचर क्या कर रहा है? पानी को ठंडा कर रहा है, नीचे भेज रहा है, ठंडा कर रहा है, नीचे भेज रहा है, जिसकी वजह से नीचे वाले थर्मामीटर जो है T1 वो फास्ट 4 डिग्री तक आ रहा है एंड T2 इज टेकिंग टाइम। लेकिन जैसे ही दोनों 4 डिग्री पे आ जाएंगे, अब वो नीचे करके ठंडा करके नीचे नहीं भेज के ठंडा करके ऊपर भेज रहा है, which means T2 should start increasing fast and that goes to 0 degree Celsius। So this graph tells me कि after 4 degree how T2 is reaching fast to 0 degree Celsius but T1 is taking time। And to conclude with, we also saw कि anomalous behavior water का exist करता है, इसलिए aquatic life जो है बहुत comfortably भी ठंडी में survive कर लेती है पानी के अंदर, पूरा पानी freeze नहीं होता। On that note, we'll conclude today's session। Our next topic is basically dew point and humidity, but we'll listen to it next time। I hope till then you revise your concepts well, come up with doubts and practice enough। Thank you।